हेलो बच्चों, नमस्कार। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर 5 समझ में आ रहा है? टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस। यू हैव स्टडीड अबाउट टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायगोनल क्रॉस। एंड चैप्टर इज 5, फिफ्थ चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ inheritance and variation. So far you have studied about different type of cross: monohybrid cross, dihybrid cross, test cross, back cross. And yesterday I also taught you about the Mendel's first law, law of dominance, right? So today second law of Mendel is law of segregation. You will study law of segregation. You remember children here, this is most acceptable law of Mendel, most acceptable law of Mendel. Generally in the exam this can also be asked, which law of Mendel is more acceptable? The answer is law of segregation. Out of three law of Mendel: law of dominance, law of segregation, and third law is law of independent assortment. So out of these three laws, this second law of segregation of Mendel is most acceptable. ठीक है बच्चों, मैं इसमें बहुत प्रेशर दे रही हूँ, तो कौन सा लॉ ऑफ मेंडल का सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है? दिस इज सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट? Law of segregation you can define, it is based on the fact that the alleles do not show any blending. ठीक है, ब्लेंडिंग मीन्स होता है मिक्सिंग, मिक्सचर, मिक्स नहीं हो रहा है, मिक्सिंग. ब्लेंडिंग मीन्स मिक्सिंग. It is based on the fact that the alleles do not show any blending and both the characters, both the alleles or trait, both the trait you can say here, sorry, both the character means phenotype, both the character or phenotype are expressed in F2 generation. In F2 generation, which was not shown, those character was not shown in F1 generation, right? It is based on the fact that alleles, you know, pair of gene do not show any blending, mix नहीं होते, and both the character, जैसे F1 generation में only dominant character is expressed and recessive character did not express. तो सेम हियर यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसलिए आपको F2 जनरेशन तक जाके इसका एग्जांपल देना है, based on the fact that alleles do not show any blending and both the character means phenotypes are expressed in F2 generation. Those character was not expressed in F1 generation. Now example आप इसका देंगे again, best example, टॉल एंड ड्राफ्ट का क्रॉस बनाइए आप बच्चों, ठीक है? अगेन टॉल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ये ड्राफ्ट टॉलनेस, इस तरह से गेमिट्स बनाएंगे आप, ड्राफ्ट को इस तरह से बनाएंगे. इनको क्रॉस का मतलब पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन करना है. दीज आर द पेरेंट्स, दे फॉर्म गेमिट्स. जस्ट I discussed this in yesterday also. And in F1 generation, this is capital T, pure homozygous condition है तो tall, and this is also homozygous draft. And in F1 generation, all the plants were tall. कौन सी जनरेशन है? This is F1 generation. Here the which law of Mendel is applicable? Law of dominance, because here the tallness is able to express, right?
but you have to give the example of law of segregation, then you have to go to the F2 generation also. Now you select these parents, means F1 progeny के बीच में क्रॉस कराना है आपको. F1 progeny means all the tall, phenotype देखने में कैसे हैं, सारे tall. तो यहाँ पर आपने F2 बनाना है और इनको फिर से बनाइए आप गैमीट्स. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. नाउ इसको यूज करना है इन गैमेट्स को. ये कौन से किसके पेरेंट्स हैं? दीज आर द पेरेंट्स ऑफ F1 जनरेशन एंड दे अगेन प्रोड्यूस गैमेट्स. एंड इसको आगे बढ़ाइए विद द हेल्प ऑफ चेकर-बोर्ड मेथड और पुनेट स्क्वायर मेथड. चेकर-बोर्ड एंड पुनेट स्क्वायर मेथड यू कैन यूज. कैपिटल टी स्मॉल टी, समझ आ रहा है यहाँ पर. ये गैमेट्स मैंने इधर लिखे हुए हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये पेरेंट्स आप यहाँ लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी. क्रॉस करेंगे ये प्लांट कैपिटल टी हियर कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन दिस एंड दिस कैपिटल टी स्मॉल टी एंड दिस इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, राइट. तो ये कौन सा आपने क्या बनाया है? F2 जनरेशन. एंड हियर यू कैन सी phenotype ratio is 1 to 3. 3 plants are tall, 1 is dwarf. So the phenotypic ratio here is 3:1. That's why this law is based on the fact that the alleles means both the character are expressed here, tallness as well as dwarfness. ठीक है, तो this law is called law of segregation. Now next is very important question, children. You are going to study. Generally is also asked in the board exam. Incomplete dominance. What is incomplete dominance? ठीक है, अभी तक आपने देखा नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द मेंडल ऑन द पी प्लांट. ठीक है, मेंडल अपने सारे एक्सपेरिमेंट किसमें किए हैं? पी प्लांट. क्या नाम है इसका? पाइजम सटाइवम पे एक्सपेरिमेंट किए. ये बात आपको क्लियर है. तो जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे किए वहां पर क्या आपने देखा? व्हाट डिड यू स्टडी? ओनली द डोमिनेंट कैरेक्टर इज एबल टू एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन. ठीक है, इसलिए आपने उस लॉ को क्या नाम दिया था? लॉ ऑफ डोमिनेंस. हियर इज द वर्ड इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. यू रिमेंबर हियर चिल्ड्रन, व्हेन द सेम एक्सपेरिमेंट वाज रिपीटेड ऑन अनदर प्लांट्स. जैसे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे, मेंडल एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन पी प्लांट. ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूजन नहीं करना है. मेंडल ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे? पी प्लांट. व्हेन द सेम एक्सपेरिमेंट वाज डन ऑन द अनदर plants like dog flower or snapdragon, antirrhenium. एक अनदर प्लांट है मिराबिलिस जेलेपा, फोरोक्लॉक प्लांट एक्सेट्रा. ये कुछ और प्लांट्स थे जिसपे कि सेम एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट टू स्टडी द लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो कौन से प्लांट्स थे? डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, एंटीरिनियम और मिराबिलिस जेलेपा. ये डॉग फ्लावर और स्नैपड्रैगन, इन प्लांट्स पे जब ये एक्सपेरिमेंट किए तो अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे किया? फॉर एग्जांपल, इन ए स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर, रेड कलर्ड flowering plant was crossed with white colored flowering plant. ठीक है, स्नैपड्रैगन को के कौन सा फ्लावर सेलेक्ट किया है? रेड कलर का, वो प्लांट जिसमें रेड कलर का फ्लावर आता है, और दूसरा प्लांट जिसमें व्हाइट कलर का फ्लावर आता है. ये बात समझ आ रही है? रेड कलर का एलिल्स आप कैसे लिखेंगे? ये क्यों लिख रहे हैं आप पेयर में? बिकॉज जीन्स आर इन द पेयर. एलिल्स वर्ड यूज किया आपने, पेयर में लिखेंगे आप. और इसका कंट्रास्ट स्मॉल आर. जस्ट नाउ यू हैव स्टडीड टॉल एंड ड्राफ्ट, को उसी का कंट्रास्ट आप लिखेंगे. ठीक है, अगर आप ड्राफ्ट भी सेलेक्ट कर रहे हैं तो कैपिटल डी से लिखेंगे, टॉल नहीं लिखेंगे. अदरवाइज टॉल और स्मॉल टी एंड कैपिटल टी का यूज करें आप. ऐसे ही यहाँ पे ये रेड कलर फ्लावर को कैपिटल आर से दिखाया है और व्हाइट कलर को स्मॉल आर से. ठीक है,
ये क्या है, व्हाइट कलर्ड फ्लावर, व्हाइट, एंड दिस इज रेड कलर्ड। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है इसलिए इनको आपने सर्किल कर दिया, एंड दीज आर पेरेंट्स। दे विल फॉर्म गैमेट्स लाइक दिस, सेम इस तरह से आप क्रॉस बनाएंगे, गैमेट्स बना लिया आपने, ठीक है। क्या बनाया, ये हैप्लॉइड गैमेट्स बन गए, मीन्स पॉलिन ग्रेन बन गई और ओवम बन गए। इस तरह से अब इनमें क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ। इन F1 जनरेशन, can you tell me children what type of plant should be this plant, what type of plant should it be? According to Mendel, this plant should be red in color, होना चाहिए नहीं। मेंडल ने जैसे डोमिनेंट करेक्टर और ड्राफ में क्रॉस किया, टॉल को ड्राफ को किया, तो टॉल करेक्टर क्या हो गया, एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। तो यहाँ पर जब ये सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर आप स्नैपड्रैगन में कर रहे हैं, इस बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये पी प्लांट नहीं है बच्चों, ठीक है। अगर पी प्लांट में अगर आप क्रॉस कराएंगे रेड और व्हाइट में, तो ये अकॉर्डिंग टू मेंडल पी प्लांट पे ये फ्लावर सारे रेड बनेंगे इन F1 जनरेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, बट इन डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन इन F1 जनरेशन neither this means this F1 generation resemble to the original red color or white, दोनों में से किसी से भी रिजेंबल नहीं किया इसने। एंड इन F1 जनरेशन all the plants producing pink colored flower, pink color, ठीक है। कैसा पूरा, अगर पी प्लांट में कराएंगे, मैं इसको फिर से बताऊंगी आपको, कंपैरिजन करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन द cross is made between the pea plant of red and white flower, then make the cross to show the inheritance of pattern। तो यहाँ पर आप डॉग फ्लावर बना रहे हैं, इसने ड्रैगन बना रहे हैं, तो रेड फ्लावर प्लांट when crossed with white, then in F1 generation all the plants were pink, ठीक है। कैसे थे सारे प्लांट, यहाँ पे पिंक हो गए, जबकि पिंक की अभी आप इतना इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर देखिए। इट मीन्स दिस पिंक कलर इज नाइदर रिजेंबल टू दिस रिसेसिव कैरेक्टर व्हाइट nor resemble to this red dominant character red, but these plants are showing intermediate character between the red and white, right? So this law is called incomplete dominance. What is incomplete dominance? Means F1 progeny neither showing the character of their original parent, recessive or dominant character, but they are showing the intermediate character between them, right? This लॉ इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप इसको आगे बढ़ाएंगे, सेम कैपिटल आर और स्मॉल आर की सेकंड जनरेशन F2 बनाएंगे। F2 जनरेशन ऑफ दिस पिंक कलर्ड फ्लावर्स, कैपिटल आर स्मॉल आर, सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन होने आ रहा है, इन प्लांट्स के बीज को बो दिया गया है, ठीक है। सेल्फ एंड दे अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये पिंक कैसे कलर है, दोनों किस कलर के पेरेंट्स है, ये पिंक, दे आर प्रोड्यूसिंग पिंक फ्लावर। नाउ इनको क्या किया है, दे विल अगेन प्रोड्यूस द गैमेट्स, स्मॉल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, बना के प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है। गैमेट्स बन गए, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस चेकर बोर्ड मेथड टू मेक द क्रॉस, चेकर बोर्ड मेथड, ये गैमेट्स यहाँ लिखिए, दिस कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, राइट। क्रॉस देम, इस तरह से करिए आप, क्या बनेगा यहाँ, कैपिटल आर, व्हेन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड दिस इज स्मॉल आर। कैन यू आइडेंटिफाई द फ्लावर, कैपिटल आर मीन्स व्हाट इज द कलर ऑफ दिस फ्लावर, रेड। स्मॉल आर, कैपिटल आर, कितने हैं ये 2, ये कितना है 1, क्या कलर होगा इनका, पिंक। और दिस स्मॉल आर, इसका इंडिकेशन है, दिस इज द, इट रिप्रेजेंट द कलर व्हाइट, ठीक है। 1 इज रेड, 2 हाइब्रिड मीन्स पिंक कलर फ्लावर प्लांट, एंड दिस 1 इज व्हाइट। 1 2 3 4 प्लांट्स आर देयर, तो 4 में 1 कैसा है, रेड, 2 कैसे है, पिंक, 1 कैसा है, व्हाइट। इट मीन्स ये आपको फिनोटाइप रेशो दिखाई पड़ रहा है, कौन सा रेशो है, ये देखते हुए दिखाई पड़ रहा है। ये कैसा है प्लांट, रेड कलर प्रोड्यूस करेगा, पिंक, एंड दिस इज व्हाइट। यू कैन राइट हियर आल्सो। नाउ दिस इज फिनोटाइप और जीनोटाइप, दिस इज फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस से जब ये 4 प्लांट ग्रो हुए तो इनमें कैसे कलर के फ्लावर आए। 4 प्लांट थे, एक में कैसा आया, रेड, 2 प्लांट कैसे थे, which are producing pink colored flower and 1 is producing white colored flower. It means phenotypic ratio is
1:1. What is genotypic ratio? Genotypic ratio is also same 1:2:1, right? 1 इस तरह से आप लिख सकते हैं. 1 कैसे है यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो में? 1 मीन्स 1 सेम रेड, 2 कैसे है पिंक एंड दिस. इट मीन्स इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो इज द सेम. दिस इज क्लियर. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ है? जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो इज द सेम. ठीक है. बट when the same experiment was repeated on pea plant पे मैं आ रही हूँ. ये मैंने किसका क्रॉस बनाया हुआ है? स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर या एंटीलिनियम या मिराबिलिस ज़लैपा कुछ भी. नाउ अगर इसको पी प्लांट का भी इसका कंपैरिजन करने को आता है. एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस when the experiment conducted by on the pea plant and on the snapdragon. Then you can do like this pea plant. ठीक है. यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? कौन सा फ्लावर लिया आपने? स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर. ठीक है. पी प्लांट, पी पर मैं बार बार इंप्रेस कर रही हूँ. ठीक है. पी का मतलब दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय द मेंडल. पी प्लांट व्हेन द क्रॉस इज मेड बिटवीन रेड कलर्ड एंड व्हाइट कलर्ड फ्लावर. व्हाइट एंड दिस इज रेड. ठीक है. इसको आपने बनाना है. ये पेरेंट्स है. क्या बनेंगे? गैमेट्स. सेपरेट करिए. क्या बन गया ये? दीज आर गैमेट्स. क्रॉस करिए. कैपिटल आर स्मॉल आर सेम हियर एंड दिस जनरेशन इज F1 generation. It means all the plants in F1 generation producing what type of flower? Red colored flower. Red colored flower. ठीक है. Same experiment was repeated on the snapdragon. Just now I made this cross. Capital R small r. These are again parents. कलर भी आप लिखेंगे white. ये कैसा है? Red. They are producing gametes like this. Comparison देखिए आप. ठीक है. Same genotype is there. Capital R, small r, capital R and small r. But in snapdragon, all these plants producing pink colored flower. Pink. यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया आपने? Red. पी प्लांट में रेड कलर की फ्लावर, जबकि स्नैपड्रैगन में F1 जनरेशन में फ्लावर्स आर पिंक. प्लांट प्रोड्यूसिंग द फ्लावर व्हिच आर पिंक इन कलर. ठीक है. इसको आप F2 जनरेशन में ले जाएंगे. जस्ट नाउ आई मेड दिस क्रॉस आल्सो. चेकरबोर्ड मेथड यूज. What is their phenotypic and genotypic ratio? Just now I wrote also here. Genotypic and phenotypic ratio is same. Genotypic and phenotypic ratio is same. 1:1, 1:1. ठीक है. जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों सेम होंगे. 1:1, 1:2:1. तो जीनोटाइप फिनोटाइप यहाँ पे क्या होगा? सेम. बट इन when the experiment was repeated on the pea plant, then what will happen? These are again red colored homozygous hybrid parents. They are producing gametes. Capital R, small r. कंपेरिजन करिए. देखिए बिल्कुल क्रॉस सेम है. केवल आपने कलर का ध्यान रखना है यहाँ पर. ये वाली. ठीक है. चेकरबोर्ड मेथड का यूज करेंगे आप. कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r. यहाँ दोनों R कैपिटल आएंगे. ठीक है. इसको इससे आपने मल्टीप्लाई किया. यहाँ क्या होगा? कैपिटल R, स्मॉल r एंड R. बताइए इसमें टेबल में कोई डिफरेंस नहीं है. पर फिनोटाइप आपने लिखना है. ये प्लांट कैसा है? रेड. ये भी प्लांट पी प्लांट रेड होगा. ये भी रेड होगा. ये कैसा होगा? व्हाइट. इट मीन्स द फिनोटाइपिक रेशियो इन द पी प्लांट, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1. 3 क्या है यहाँ पे? 1. This red, this is also red and this is red. 1, 2, 3. 3 plants are red. 1 is white. See the comparison. ठीक है. यहाँ पर क्या है? 1 is red and 2 are pink. Here red, red and red. फिजिकल अपीयरेंस देखने में हमें 4 प्लांट्स ग्रो हुए. उनमें से
four out of these four plants, three are producing red colored flower. So the phenotypic ratio is 3:1. Now write the genotypic ratio. Genotypic ratio is pure red 1:1. It means genotypic ratio is same in the incomplete dominance as well as in the law of dominance. 1:1. One is what? Red. 2. This is red, and 2 is hybrid, and this one is pure white. 1:1. Because in genotypic ratio you will write the genetic constitution. So here is also this is red, 2 are pink, 1 is white. It means this pattern in pea plant is law of dominance, which inheritance of pattern can be seen here. This is law of dominance. And in snapdragon, which pattern of inheritance is there? Here is incomplete dominance. See children, this is very very important question. ठीक है, बहुत important question है. इस तरह से कंपैरिजन करने को आ जाता है. ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर P वर्ड आएगा तो आपको मेंडल वाला एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा जहां आपको डोमिनेंट कैरेक्टर को F1 जनरेशन में शो करना है. बट इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस हियर द मिक्स क्या हो रहा है? नाइदर द F1 प्रोजेनी रिजेंबल टू दिस ओरिजिनल रेड कलर नॉर व्हाइट, बट ए इंटरमीडिएट कैरेक्टर is developing here. Okay, so this is all about the incomplete dominance and today's work. Okay.